Ma'am, I'm Lieutenant Colonel Adarsh. I am second in command of the unit which was sent to Turkey for the humanitarian mission. And I must thank the government that a quick decision was taken to send us for this disaster response, because time was very crucial in this mission. So we were mobilized on 7th evening from here, and we reached there 8th in the morning. Then from the local Adana airport, we had to go to one of the places, Iskenderun, where we were told to establish our field hospital. And within a matter of hours, we were functional and we were receiving casualties by 8th afternoon. As far as the number of casualties, it was a huge amount that we dealt with. In the total duration of the operation, we saw around 3,600 patients, more than that in fact. And it included major surgeries, also a couple of them. Minor surgeries, they were tremendous. There were a lot of neglected trauma initial 2-3 days. But then the profile of the patients started changing. The trauma cases were coming less and less, and the chronic cases, which the patients were not able to go to their local hospitals because they were not functional due to damage to the buildings. So they started coming to us. And we are lucky that we could provide them the best medical care that could have been possible in those scenarios. And yes, again, the mission was to win the minds and heart of the people by providing them timely medical care. I think we have achieved that. So what response, the goodwill gesture that you received from the patients there? The patients were very thankful because, as I said earlier, their healthcare system was not functioning at the max. So they were kind of very grateful to the nation and the team that we are there and providing the necessary medical assistance. At the same time, I would like to thank the people of Turkey also who volunteered. There were a lot of volunteers who were helping us with translations, with pharmacy. There were a lot of interns which joined us, a lot of doctors, local doctors which joined us. So yes, it was a well-oiled machinery, a very good team, and we could deliver, I hope. हमारा जो यूनिट गया था उसका नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जो पैरा ब्रिगेड का हिस्सा है. तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डिजास्टर रिस्पांस के लिए हम सबसे पहले ईयर मार्क रहते हैं. और मैं अपना सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही जल्दी ये डिसीजन ले लिया कि हमारी टीम जो है वहां मेडिकल एड के लिए जाएगी. 7 तारीख को हमें बता दिया गया कि हमें मूव करना है. इनफैक्ट 6 को ही बता दिया गया था. 7 को हम लोग यहां से निकल गए थे. 8 फरवरी को हमने वहां पे अपना अस्पताल जो है स्थापित कर लिया था. एक फील्ड हॉस्पिटल के लिए बहुत ही क्रिटिकल था कि हम जल्दी से जल्दी अपने आप को स्थापित करें ताकि हम पेशेंट्स को देखना शुरू करें. हमने इस्केंदरुन में अपना फील्ड हॉस्पिटल जो है उसको स्थापित किया और 8 की शाम को ही हमने मरीज देखना शुरू कर दिया था. पहले 2-3 दिन हमारे पास ट्रॉमा केसेस काफी आए, जो कि 48-72 घंटे जमीन के नीचे दबे हुए थे, घरों के नीचे दबे हुए थे, उनको निकाल के लाया गया. उनको हमने बेहतरीन उपचार जो मिलना चाहिए था उनको वो हमने दिया. उसके बाद थोड़ा ट्रॉमा केसेस जो कि अर्थक्वेक की वजह से वो कम हो गए, लेकिन उसके बाद जो लोकल लोग थे, क्योंकि उनके अस्पताल पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो इमारत थी उसमें दरारें आ गई थी, तो वो भी हमारे पास आना शुरू हो गए. और एक दिन में कई बार हमने 500 से 600 मरीज भी देखे हैं. अगर मैं आपको कुल बताऊं तो हमने 3600 से ज्यादा लोग का वहां पे इलाज किया है. सर, कुछ रिस्पांस जो आपको पेशेंट्स से मिला वहाँ पे, कुछ गुडविल जेस्चर जो आपको मिला वहाँ से? जो वहां पे पेशेंट्स थे उन्होंने तहे दिल से हमारा शुक्रिया अदा किया है, हमारा और भारत सरकार का, कि हमारी टीम वहां पे पहुंची. इनफैक्ट हम सबसे पहली मेडिकल टीम थी जो वहां किसी दूसरे देश से पहुंची थी. अंडर 50 इंडिपेंडेंट पैरा इन्फेंट्री ब्रिगेड एंड आई एम पोस्टेड एज अ मेडिकल ऑफिसर. और अभी हम लोग ऑपरेशन दोस्त कंप्लीट करके टर्की से रिटर्न हुए हैं जस्ट. एंड हमें मोबिलाइज करने के लिए बताया था. हमने विद इन 12 to 10 आवर्स के अंदर हम लोग ने सारा सामान रेडी करके वी वर रेडी टू टेक ऑफ फ्रॉम आगरा एयरफोर्स स्टेशन. एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद स्टार्टिंग में काफ़ी डाउट्स थे, बिकॉज हर तरफ दिख रहा था कि काफ़ी नुकसान हुआ है जान का, और सारा मतलब जो लोगों का पूरा बिल्डिंग्स हैं, उनके घर हैं, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है. वो देखते देखते हम जा रहे थे, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि हमें कहाँ जाके सेटअप करना है. बट विद द हेल्प ऑफ आवर सीनियर्स एंड क्वार्टर मास्टर एंड कमांडिंग ऑफिसर्स हमें फाइनली एक लोकेशन वहाँ पे मिली जो कि एक हॉस्पिटल के पास थी. वो एक स्कूल था जिसकी बिल्डिंग काफ़ी मतलब मजबूत थी. जिस तरह से देखा था कि बाकी जिन बिल्डिंगों को नुकसान हुआ था उस हिसाब से उसमें नुकसान उतना नहीं था. तो हमें वो एक जगह सेफ लगी, प्लस वो हॉस्पिटल के पास था. तो हम हॉस्पिटल में जो भीड़ आ रही थी हम उसे डिकंजेस्ट करने में भी मदद कर सकते थे. तो हमने वहाँ पे जाके
हमें लोग इससे बहुत हेल्प मिली है वहाँ पे। एंड आई से कि टर्की गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल रही है, बट वहाँ के लोकल्स बहुत ही हेल्पफुल थे। इतना होमली उन्होंने हमें वहाँ पे फील करवाया, और हम लोग वहाँ अकेले काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हमारी पूरी टीम और लोकल्स वॉलंटियर्स की पूरी टीम वहाँ पे थी, और वहाँ उनकी मदद से हम लोगों ने, हमारे जो मैन हैं उनकी मदद से पूरा वहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप किया। और आई थिंक विद इन 1 or 2 hours of setting up the hospital, just saying that ki we are ready, patients started to just come. So like there was no stopping after that. And after almost completing 10 to 11 days there, we have seen almost 3,600 patients, and especially with the help of all the seniors and all the volunteers that were there at that time.